Hello friends, greetings. Today I am going to discuss the part of the second unfinished part, that is part of Mesolithic period. ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये टॉपिक क्या है? Mesolithic पीरियड का सेक्शन है जिससे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. And this period you should have to know about that too. This period is called transition period. समझिएगा, this period is called transition. ट्रांजिशन ये एक युग बड़े ही बदलाव का युग है. कारण क्या है? इसके ऊपर में क्या है? पैलियोलिथिक है. इसके ऊपर में क्या है? पैलियोलिथिक है. और इसके नीचे का युग है, दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक. बट दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज ए मेजर पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, यानी संक्रमण का एक बहुत बड़ा काल माना जाता है. इसे हम लोग ट्रांजिशन एज के नाम से भी जानते हैं. ट्रांजिशन एज की जो सबसे बड़ी विशेषता है जिस पे आप ध्यान देंगे, क्या देखते हैं? पैलियोलिथिक का भी इसमें प्रभाव होगा और नियोलिथिक का भी इसमें प्रभाव होगा. एक संक्रमण का युग है, एक बदलाव का युग है. इस बदलाव का प्रभाव दोनों पैलियोलिथिक और कह सकते हैं हम लोग नियोलिथिक एज पे इसका प्रभाव बहुत बड़ा, बहुत ही व्यापक रूप से पड़ता है. आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा. इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं आपको. इसको पढ़ने का जो मेन तरीका होगा नियोलिथिक एज का, इस नियोलिथिक एज की विशेषता की जब हम बात करते हैं, नियोलिथिक विशेषता की बात करते हैं, तो जिस चीज़ पे आप बल डालेंगे नियोलिथिक एज का, जिसकी विशेषता की बात करते हैं, इसको कहते हैं मीसोलिथिक एज. दिस इज व्हाट मीसोलिथिक. Mesolithic age. And the major criticality of this Mesolithic age is what? It is also called microlithic tools. Microlithic tools. मतलब इस काल में क्या देखते हैं? टूल की जो विशेषता है, टूल बहुत छोटा होता चला जाता है. और इसका जो मेजर थीम्स है, द थीम इज नोन एज व्हाट? हंटर. हंटर एंड हर्डर. कहने का उद्देश्य क्या है? ऑलरेडी क्या देखते हैं? आदमी क्या है? हंटर है. हंटर है. हंटर के साथ क्या है? फूड गैदरर है. फूड गैदरर है. और तीसरी चीज क्या नजर के आती है? हर्डर. हर्डर का मतलब है मानव क्या हो जा रहा है इस काल में? पशुपालक के रूप में भी जाना जा रहा है. तो कहते क्या? हंटर है. हंटर के बाद क्या है? फूड गैदरर है, शिकारी. शिकारी के बाद क्या देखते हैं हम लोग? पशुपालक भी हो जाता है. तो द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट by this time you could elaborate that man could be by this time, man could be what? Segregation of work we also find over here. What is that? Man is what? Man is already hunter. Man is already hunter. Man was already what? Food gatherer. Food gatherer. Apart from that, man was also herder. Man was also herder. So what is that? We are finding here three kind of activity, three kind of profession being started by this time. By this time,
In the first profession was what? Man was always involved with the hunting activities. Hunting activities. This is number one. Food gathering. The women used to involve with food gathering. The third one is what? First time. What we find? Animal was domesticated by this time. Animal was domesticated. Not only are we animal domesticated, first time we also find domestication of plant. Domestication of plant was also happened by this time. So you should have to ready by this time is that by this is the major area of transition. By this time man was hunter, but the hunting activity were very much sharpened. Why? Because of microlithic tool also came to this period. It was the period of what? Development of microlithic tool. And this tool has given edge, given privilege, provided to facility to what? Making herder animal, and animal rearing was also developed. Means domestication was element, domestication of animal was also done by this time. So this thing you have to keep in your mind that too. The theme has been changed. Hunter, herder and food gatherer means domestication of plant animal was done by this time. This is the core feature, core thing over that too. ये core feature होगा, core theme होगा जिसके ऊपर पूरा ये टॉपिक आपको डिस्कस किया जाएगा, उसका प्रमाण देखने को मिलेगा इस काल में. अब आइए हम आगे बढ़ते हैं. What is important thing regarding this one? इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है वो क्या है? ध्यान आप रखिएगा. क्या देखते हैं? दिस इज द कंडीशन ऑफ टूल्स. Tools were very much sharpened. They were very much, you can say that it was very much effective, and the size of the tool are also very much reduced. And by this time, what you can say, these kind of tools were developed by this time. This is called dentacular tool. The tool having multiple edges. टूल में मल्टीपल एज है, धार निकली हुई है, उसकी तीव्रता भी, उसका पेनिट्रेशन भी, उसका इफेक्टिवनेसी इस काल में बढ़ता चला जाता है. हैंड एक्स जैसी चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर देखते हैं, ये टूल देखते हैं. और क्या देखते, छोटा टूल मिल जाए, स्क्वायर टूल भी देखने को मिलता है, क्लीवेज भी मिल जाता है इस काल में. शार्पन टूल के ऊपर कई धारदार चीज़ें भी नज़र आती है. दिस वॉज द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम. यू हैव टू नो अबाउट दैट टू. तो बेसिक फंडामेंटल थिंग इज व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ टूल्स was a major part. That is the age of what you can say transition. So make it that too. Here what is we find over here? Here what we find? We find that the Mesolithic age hunter and herder. Hunter and herder means man was also what? Hunter apart from agriculture आदमी था, मानव था. एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ क्या देखते हैं, पशुपालक भी था. सो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल वॉज टुक प्लेस बाय दिस टाइम. इसको हम लोग याद रखेंगे. दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन पीरियड. द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड टू मेसोलिथिक पीरियड. इट मार्क्ड बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियोसोटीन period to Holocene and favorable change in the climatic condition. Why it was happened? It was happened due to change in climatic condition, change in climatic pattern, and the climatic condition and pattern is what? Temperature became raised by this time. So this was more ideal to develop domestication of plant animal. It was healthy condition by this time. And this Mesolithic age is transitional phase between Paleolithic to Neolithic age. So you could have 3 questions from here. Note it down. First thing was that to domestication of plant animal has been taken place. Point number 1. Point number 2, the size of the stone were very much decreased. This is, you can say, a single inch centimeter type of things too. And the tools become very much, you can say, sharpened,
very much sophisticated and very much easily utilitarian for killing the animal or hunting the animal by this time. And the third thing is that too, this is the era of between two phases. The phases was what? Paleolithic and what is the Neolithic? This was the middle age between the two, from Paleolithic to Neolithic age. That is the period is called transition phase. The Mesolithic people lived on hunting, fishing and food gathering. And also they also domesticated the animal. The animal domesticated dog, cattle, sheep and goat. This was the animal find first time. And the first plant to be what? Cultivated by mankind was, it was what? Wheat, in the form of wheat or in the form of barley. So two form of plants, the plants of wheat, that is called Tritium aestivum, and another plant is what? Barley was also cultivated. Barley को हिंदी में हम लोग जौ के नाम से जानते हैं. And the places we find over is what? The place is Adamgarh, Madhya Pradesh, and the Bogor, that is the place located at Rajasthan. तो इसको भी याद रखना होगा. आदमगढ़ कौन सा स्थान है, कहाँ है, अब बोगोर कहाँ पे स्थान है, राजस्थान का है. और क्या देखते हैं, पहली बार एरियल एविडेंस का मिलता है, क्या नज़र आता है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. तो सवाल ये पूछा जाएगा, पहली बार पशुपालक और क्या देखते, कृषक के रूप में आदमी कब आता है? योर आंसर वुड बी इट इज व्हाट? मेसोलिथिक एज. And in this Mesolithic age, the place is what? The place is Madhya Pradesh, and the place is also known as Rajasthan. The earliest evidence of animal domestication of the first time was dog was buried with a human being. यानी कुत्ते को पहली बार आदमी के साथ दफन किया गया. ये चीज़ देखते हैं, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं 12,000 साल में क्या देखते हैं, ये चीज़ फ़लस्तीन पैलेस्टाइन में देखने को एविडेंस मिलता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नज़र आता है, क्या नज़र आता है? पहला कंडीशन ये नज़र आता है, डिस्पोजल ऑफ डेड कम फ्रॉम मेसोलिथिक एज. आदमी को क्या होता था, पैलियोलिथिक एज में आदमी के डेड बॉडी को मैदान में छोड़ दिया जाता. अब क्या देखते हैं, आदमी को बैरियल किया जा रहा है. और प्लेस क्या नज़र आता है, बोगोर राजस्थान में एंड लंगनाज गुजरात में भी दो स्थान देखने को मिलते हैं. और फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन, अब क्या देखते हैं, पहली बार मानव रहना शुरू कर देता. फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन ऑफ व्हाट? गंगा प्लेन, यानी गंगा के प्लेन, गंगा घाटी के तट पे मानव पहली बार रहने का प्रमाण मिलता है, जो कि मेसोलिथिक पीरियड में हम लोग को देखने को मिलता है. दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, कंडीशन क्या है? फेवरेबल, यानी कह सकते हैं जो उसका वातावरण है, जलवायु है, जलवायु किसके लिए सहायक हो जाती है, बेटर हो जाती है. और क्या कह सकते हैं, फेवरेबल हो जाती है, ताकि मानव उस काल से वहाँ पर रहना शुरू कर देता है, सेटलमेंट शुरू होता है और नदी घाटी का क्षेत्र वो नज़र आता है. और एटमॉस्फेयर क्या है, रेनफॉल, मतलब है बारिश भी अच्छी होती है, वर्षा भी अच्छी होती है. और साथ ही साथ क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है. और इस काल में क्या देखते हैं, इस काल में देखते क्या हैं, क्रॉप का उत्पादन, क्रॉप की उत्पत्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस काल में देखने को हम लोगों को मिलती है. क्रॉप की उत्पत्ति काफ़ी मात्रा में देखने को हम लोग को मिलती है. और इस प्लेस को याद रखिएगा, ये प्लेस गंगा घाटी का योजना होगा. फर्स्ट टाइम कोलोनाइजेशन मतलब मेसोलिथिक एज में होता है. इट लेड टू रिडक्शन इन नॉमेडाइजेशन एंड सस्टेनेबली सेडिमेंट्री सेटल एंड इंक्रीज पॉपुलेशन. अब यहाँ से क्या देखते हैं, मानव की जनसंख्या भी बढ़ रही. ये भी सवाल होता है, क्वेश्चन होगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आदमी की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है. कारण क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन. कारण क्या है, खाने पीने की व्यवस्था है. मानव इस काल में पशुपालक भी हो रहा है, मानव इस काल में कृषक भी हो रहा है. दिस कुड बी द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू डील विद अ बेटर आंसर, टू डील विद द MCQ क्वेश्चन ओवर देयर. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, स्टोन की बात करते हैं. तो द कैरेक्टर चरितार्थ की बात करते हैं. स्टोन का चरित्र कैसा था, क्वालिटी कैसी थी. तो क्या देखते हैं, ये माइक्रोलिथ का मतलब है बहुत ही छोटे छोटे पत्थर के औजार हथियार थे. और उसमें देखा जाता पॉइंटेड क्रेसेंट ब्लेड, जो ब्लेड है वो जो ब्लेड है इस प्रकार का ब्लेड आ रहा है, जिससे कहते क्या, काफ़ी धारदार ब्लेड जैसी चीज़ें नज़र आ रही है.
स्क्रैपर भी हो रहा है। माइक्रोलिथिक यूज मेड ऑफ फ्लिंट बनता है काफ़ी अच्छा सा। फ्लिंट का मतलब है इस प्रकार का धारदार धारदार औजार बन जाता है इस काल में। इस चीज़ को देखते हैं, फ्लिंट बन जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो इसकी साइट है, जो इम्पॉर्टेंट साइट की बात करते हैं, इसमें साइट का की बात जब करते हैं तो क्या नज़र आता है, सराय नहार राय, ये बड़ा साइट। उसके बाद क्या, मोहराना पहाड़ है ना, लेखी, ये पूरा की पूरा साइट माल मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश का, जबकि बेमेतका में आदमगढ़ का भी साइट नज़र आता है, मध्य प्रदेश का भी साइट नज़र आता है, अखोज साइट भी नज़र आता है, और वसोलन और हरिपुर का भी क्षेत्र इस काल में यहाँ देखने को नज़र आता है। लंगनाज यहाँ गुजरात में है, बगोर है, तिलवाड़ा है, परछपरा है, बसीन राजस्थान में, ये सारे के सारे साइट्स मिल जाते हैं। अब आइए हम इसकी विवेचना करते हैं किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट किस रूप में देखने को मिला है। क्योंकि पैरामीटर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या नज़र आता है हम लोगों को, जो सबसे मेजर चीज़ नज़र आता है इस पैरामीटर का, कहते हैं टूल इसका आधार है। यानी कहने का मतलब क्या, टूल इस काल का आधार है और टूल के बेस में ही सारी संज्ञा का वर्णन इस काल के डेवलप करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगी, टूल। इस काल के टूल में व्यापक परिवर्तन होता। द मेजर चेंजेस हैज टेकन प्लेस फ्रॉम दिस टाइम, द कंडीशन एंड साइज ऑफ द टूल्स। टूल्स बिकेम वेरी शार्पेंड। The tools became very sharpened. The tools seems to be very much, you can say, sharpen. Apart from sharpen, it has also wedge. इसके धारदार भी चीज़ें नज़र आती है। टूल क्या देखते हैं, धारदार हथियार नज़र आता है। और इस काल में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टूल देखने को मिलता है। मतलब है साइज इज वेरी मच, दिस इज कॉल्ड माइक्रोलिथ। जो सारा बदलाव आता है, बदलाव किस चीज़ में आ रहा है, टूल में। हमेशा याद रखिएगा फंडामेंटल, जो भी बदलाव आ रहा है किस चीज़ में आ रहा है, हथियार में बदलाव आ रहा है। इस काल में एक और बड़ी चीज़ नज़र आती है कि टूल जो तैयार हो रहा है इस काल का, वो प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, एक तरफ क्या देखते हैं हम लोग, एक तरफ देखते क्या हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स है, बोन्स ऑफ एनिमल्स है। फिर क्या देखते हैं, फिर क्या देखते, बोन्स एनिमल के बाद क्या देखते हैं हम लोग, और भी चीज़ देखते हैं। बोन्स ऑफ एनिमल आ जाता है। फिर क्या देखते हैं, हॉर्न्स ऑफ एनिमल, हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स। यानी जो टूल का प्रयोग किया जा रहा है उसमें क्या देखते हैं, जानवरों के शरीर का की हड्डियां भी हैं, और क्या देखते हैं, जानवरों का सिंगों का भी प्रयोग किया जा रहा है टूल्स में। और टूल जो है कि नहीं, टूल का सोफिस्टिकेशन बढ़ता चला जाता है इस काल में। इस काल में एक और चीज़ें नज़र आती है, हम लोग पहली बार क्या देखते हैं, फिश हुक्स, यानी मछली पकड़ने के जो कहा जा सकता है बंसी होते हैं, उसको फिश हुक कहा जाता है। इसका प्रमाण मिलता है, फिश हुक्स। इस काल में फिश हुक्स, यानी कह सकते हैं मछली पकड़ने वाली जो दांत है, जो कह सकते क्लिप है, वो भी चीज़ का टूल्स है, उसका प्रयोग इस काल में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, द मेजर सिस्टम वी फाइंड ओवर हियर इज व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन साइज एंड शेप ऑफ टूल। इट इज व्हाट, साइज एंड शेप्स ऑफ टूल्स। एंड शेप्स ऑफ टूल्स, ये दो चीज़ों पे ये चीज़ निर्भर कर जाती है। आपने इसे समझ लिया होगा। तो कंडीशन क्या है, इस काल में देखते क्या, टूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। और जब टूल्स का डेवलपमेंट होता है तो दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, जहाँ टूल्स का डेवलपमेंट होगा तो दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ शेल्टर।
shelter and food. जहाँ तक बात होता है शेल्टर की अगर बात करते हैं, स्टिल मैन यूज टू रिजाइड ऑन द केव्स, बट द केव फ्रॉम यू कैन से बिट डाउनवर्ड साइड, आदमी अब नीचे आके रहना शुरू करता है, केव में लिविंग आदमी का हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम द केव मैन ऑल्सो कम डाउन टू द अर्थ, और क्या देखते नीचे में क्या नजर आता है, वॉट वी फाइंड ओवर हियर वी ऑल्सो फाइंड वॉट वी कैन से a stream of water, a stream of water, यानी पानी का जवाला रहा होगा, कंडीशन ये आता है। नाउ द क्वेश्चन राइज, एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, आप अच्छे समझिएगा, कारण क्या, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे कारण क्या था, आदमी नीचे आता है, नीचे आने का कारण और क्या देखते, पानी रहता है, तो कंडीशन क्या, the sense of responsibility, the sense of responsibility of the mankind, मानव का उत्तराधिकार या मानव की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। कारण क्या होता है, पहली बार जानवर का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, जानवर भी संपर्क में आ जाते हैं, तो मानव जानवरों की देखरेख करने के कारण क्या देखते हैं, मानव थोड़ा ऊपर की पहाड़ी से नीचे की ओर आ जाता है, ये पर्पस सॉल्व हो जाए। तो डोमेस्टिकेशन और दोनों चीज़ें होती, जानवरों की देखरेख करता है और क्या देखते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। तो इसके कारण मानव नीचे आ जाता है, सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं ये नीचे आ जाता है। दैट वाज द शेल्टर ऑफ द मैनकाइंड बाय दिस टाइम। और शेल्टर में ही मुख्य चीज़ क्या नज़र आती है, शेल्टर में क्या नजर, अब तक मैन मेड सिस्टम नहीं है, दिस वाज ए नेचुरल हैबिटेट बाय दिस टाइम। एंड द कंडीशन फर्स्ट टाइम वी फाइंड ओवर हियर, इफ यू टॉक अबाउट शेल्टर, अगर आप बात करते हैं शेल्टर की बात करते हैं, नाउ द टर्म इज शेल्टर प्लस क्लोथिंग, यानी शेल्टर के बाद क्या देखता है, कपड़े की बात करते हैं, मानव कैसा कपड़ा वस्त्र पहनता होगा। जब क्लोथिंग की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया, क्या आ जाता है, माइक्रोलिथिक टूल्स आ जाते हैं, टूल्स काफ़ी शार्पन यूज हो रहे हैं इस काल में। अब टूल जब शार्पन यूज करते हैं, by this time man could easily remove the skin of animal, the skin of animal। आदमी क्या देखते हैं, जानवरों के खाल को, जानवरों के शेल को, जानवरों के ऊपर के स्किन को आदमी आसानी से हटा देता था। तो जानवरों के स्किन के हटाने के बाद क्या होता है, पहली बार जो क्लोथिंग बनती है, यानी कपड़े का जो प्रयोग पहली बार आता है, क्या देखते हैं इस काल में, जो कपड़े का प्रयोग पहली बार नज़र आता है मानव का नज़र आ जाता है, क्या देखते हैं, अब जो कपड़े का प्रयोग नज़र आता है, कपड़े का जो प्रयोग नजर आता है, क्या देखते हैं, लेदर। बाय दिस टाइम व्हाट वी कैन से, द लेदर वाज डेवलप्ड फ्रॉम हियर, लेदर प्लस फेदर, यानी दो चीज़ है। अब कपड़े का इस्तेमाल जो हो रहा है कैसे हो रहा है, लेदर का हो रहा है, फेदर का। फेदर के उपयोग का प्रमाण क्या मिलता है, वी ऑल्सो फाइंड फर्स्ट टाइम मैन, वी फाइंड अकॉर्डिंग टू द एविडेंस ऑफ आर्कोलॉजी, वी ऑल्सो फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, फेजेंट। मतलब कह सकते हैं हम लोग दूसरी भाषा में,
ऐसे पी हैन, इसको टर्म होता है, यू कहते हैं इरफान अभी, पी हैन, वी फाइंड द एविडेंस ऑफ पी हैन, वी फाइंड द एविडेंस ऑफ पी हैन। पी हैन का मतलब है दाना चुगने वाली चिड़ियों का भी प्रयोग पहली बार देखा जा रहा है। वी फाइंड द एविडेंस ऑफ पी हैन ऑल्सो बाय दिस टाइम। इट शोज अबाउट दैट द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल वॉज पॉसिबल बाय दिस टाइम। पी हैन होता है, द टर्म इज नोन एज पी हैन। तो क्या देखते हैं, फेदर का उपयोग किया मानव ने। फिर क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, लेदर का उपयोग किया। तो सवाल क्या उठता, पहली बार मानव ने कैसे वस्त्रों से शरीर को ढका था। द बार्क ऑफ द ट्री एंड द लीव्स ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की पत्तियां के साथ साथ पेड़ की छाल का उपयोग किया गया। अब क्या देखते हैं, अब क्या देखते हैं हम लोग कि वस्त्रों को यानी शरीर को ढकने का जो वस्त्र था, टू कवर द बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग वॉज वॉट, it was leather and the feather. Feather was used for making the caps, and leather was used for first time for making the clothing, and this is still present time available. प्रेजेंट टाइम में भी ये चीज क्या देखते हैं, पूरी तरह से प्रमाणित है। इस काल में भी मानो लेदर और फेदर का उपयोग करता है। तो आप जानिए लेदर और फेदर का जो चलन है पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में यह प्रमाण के रूप में देखने को आता है। तो यूपीएससी जो भी सवाल करता है कंटेम्प्ररी, प्रेजेंट और उसकी कनेक्टिविटी की व्यापकता ज़रूर पूछी जाती है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। अब तीसरी चीज़ देखेंगे, ये जो पहली बार फेजेंट मिलता है, इससे पता चलता है क्या, ये जो चिड़िया है ये दाना जरूर चूंघती होगी। ये जो जनरल इसका जो फूड रहा होगा वो दाना रहा होगा। दाना का मतलब क्या कह सकते हैं, वाइल्ड क्रॉप्स। द वाइल्ड क्रॉप में भी दैट कुड बी व्हीट एंड बार्ली मस्ट बी देयर। तो by this time one major thing also came to prominence by this time is that by this time man became vegetarian and non-vegetarian. मानव क्या हो जाता है, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन देन नॉन वेजिटेरियन। मैन फर्स्ट टाइम बिकेम वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मानव पहली बार वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कब हुआ, आप जवाब दीजिएगा मेसोलिथिक काल में। पहले जब धरती पर मनुष्य आया है तो क्या प्रमाण मिलता, मैन पूरी तरह से मांसाहारी था। मैन वॉज वेरी मच यू कैन से नॉन वेजिटेरियन बाय दिस टाइम। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बाय दिस टाइम fire was utilized. Fire was utilized. अब क्या होता है, मानो क्या देखते हैं हम लोग, पका हुआ भोजन खाता है। अब जो फूड का इस्तेमाल हो रहा है कैसे हो रहा है, दिस वॉज कॉल्ड कुक्ड फूड। And now the two question arises over here. I can ask you a simple question to you. What are the benefits of eating food, cooked food? What are the benefits of eating cooked food? इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। पका हुआ खाना खाने का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो आप क्या जवाब देंगे, बाय दिस टाइम द टेस्ट बर्ड ऑफ द मैनकाइंड मस्ट हैव इवॉल्व्ड। पहली बार आदमी का जो जुबान में, जो टंग में टेस्ट वर्ड है वो भी सामने आ जाता है। ये प्रमाण मिल जाता है, तभी आदमी टेस्ट का पता चलता है। और जहाँ मानव कुक्ड फूड खाना शुरू करता है तो क्या देखते हैं, द लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ वॉज वेरी मच डेवलप्ड। मानव की जीवन कह सकते हैं, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, जीवन यापन भी मानव का इस काल से बढ़ जाता है। कारण क्या है, जब मानव कुक्ड फूड खा जाएगा तो कुक्ड फूड का प्रमाण क्या है, ही वुड बी एबल टू हैव more nutrition, more nutrition,
मानव को न्यूट्रिशन पूरी तरह से मानव को मिल रहा होगा। और न्यूट्रिशन के साथ क्या देखते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल, द फूड कुड बी डाइजेस्ट क्वाइट इवली, तो मानव की लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है और कुक खाने की वैरायटी भी बदल जाती है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो जाता है। इस काल में क्या देखते हैं, एक नई फूड की व्यवस्था हो जाती है। व्हाट इज़ दैट, पहली बार फिर क्या देखते हैं हम लोग, फूड की व्यवस्था बढ़ जाती है। फर्स्ट टाइम मैन स्टार्टेड टेकिंग एक्वा एनिमल्स, पहली बार क्या देखते हैं, मानव ने पहली बार मछली का शिकार किया, या कह सकते हैं मछली जैसे खाद्य भोजन पदार्थ की स्थापना इस काल से हो जाती है। ये सवाल पूछा जाएगा, इस काल में क्या देखते हैं, मानव क्या क्या शुरू कर देता है खाना। पहली चीज़ नोट, सवाल ये पूछेगा, इसे क्रोनोलॉजी और ऑर्डर में सटाइए कि मानव ने खाने में सबसे पहली चीज़ क्या खाया। तो पहली चीज़ क्या नज़र आती है, व्हीट है, बार्ली, व्हीट एंड बार्ली। दूसरी बार क्या देखते हैं हम लोग, फाउल, चिड़ियों का प्रमाण। तो तीसरी चीज क्या कहते हैं, मीट। चौथी चीज हम लोग क्या कहते हैं, फिश। बाय दिस टाइम मैन कुड मैनेज टू अवेल द edible material in a multifaceted way, that is what you can say wheat and barley. Second thing, फाउल, फेदर, चिड़िया, पक्षी, पोल्ट्री या मीट। फिर क्या देखते हैं, फिश का प्रयोग इस काल में हो जाता है। और फिश हंटिंग का दूसरा प्रमाण मिलता है बाय विद द हेल्प ऑफ स्पीयर्स, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पीयर्स। तो दिस कुड वी फाइंड अबाउट दैट मैन कुड एबल टू हैव व्हाट इज दैट, यू कैन से दैट फूड प्रोडक्ट्स। अब जवाब क्या होगा, दूसरा क्या होगा, मानो इस काल में क्या देखते हैं, फूड प्रोडक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रोडक्ट्स, जल्दी से जवाब दो बच्चे आप लोग। फूड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे जानवर का शिकार करता है तो क्या देखते, जानवरों की चर्बी होती है, टैलो होता है, जानवर का स्किन होता है, जानवर का फ्लैश होता है, मीट होता है, प्लस जानवर का क्या देखते हैं, दूध होता है, दही होता है, योगर्ट होता है। ये सारी चीज़ें इस काल से शुरू हो, यानी खाने की वैरायटी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इस काल से देखने को मिलता है, इस काल से शुरू भी हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता इस काल में नज़र आती है। तो कह सकते हैं दिस वॉज द पीरियड ऑफ व्हाट, ट्रांजिशन पीरियड की सबसे बड़े फायदा, यह सबसे बड़ा लाभ इस काल में जो देखने को मिलता है। इस प्रकार से ही हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से जानवरों की विशेषता इस काल में हम लोग को देखने को पूर्ण रूप से कहा जा सकता है, देखने को पूर्ण रूप से मिल जाती है। और ह्यूमन लाइफ का स्पैन बढ़ जाता है। तो पहले में हमने क्या पढ़ा था, पहले में क्या पढ़ा था हम लोग, मानव अभी कहाँ रहता है, पहाड़ी पर रहता है, यानी कह सकते हैं स्टिल मैन यूज्ड टू रिजाइड ऑन व्हाट वी कैन से केव्स ऑफ द ट्री में देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, अभी भी क्या देखते हैं, मेसोलिथिक में भी यहीं रहता है, लेकिन मानव नीचे आ जाता है। मानव के नीचे आने का कारण क्या है, क्या है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसकी देखरेख करता है। इस प्रकार से मानव का क्रमिक विकास होता चला जाता है। और कल मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि व्हाट वेर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड बाय दिस टाइम। मैं क्या देखते हैं, मानव के पास पोशाक आ जा रहा है, वस्त्र आ जा रहा है। वस्त्र किस रूप में आ रहा है, लेदर और फेदर के रूप में आता है। और आगे हम लोग देखेंगे डिस्पोजल ऑफ डेड, उसके साथ क्या देखें, रिक्रिएशन मानव का किस काल में, किस रूप में, किस दिशा में बढ़ता है। कल मैं बात करूंगा इस चीज़ की। थैंक यू very much.